How many of you are happy to be here this evening? और कितने लोग आज खुश हैं यहाँ पर पहचान के? Hallelujah. If you're happy, then say hallelujah. अगर आप खुश हैं तो बोले हालेलुया Let's welcome the person sitting next to you और अपने आप बगल वाले को कहें कि With this- परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है with the same enthusiasm. पूरे उत्साह के साथ You're welcome in the house of the Lord. कि परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है Surely the Lord will bless you today. और निश्चय ही आज परमेश्वर आपको आशीषित करने वाले हैं। So, last Sunday, hallelujah, I was preaching about dreams, और पिछले रविवार मैं सपनों के विषय में प्रचार कर रहा था how to navigate the realm of dreams. कि सपनों के आयाम को किस तरह से हमें पार करना है And it is a very interesting teaching. और ये बहुत ही रोचक शिक्षा है And I gave you a few keys about how to navigate the realm of dreams. और मैंने आपको कुछ चाबियां दी थी कि किस प्रकार से सपनों के आयाम में को नेविगेट करना है। So the first one was that you have to be under a spiritual covering. और पहली बात कि आपको एक आत्मिक छत के नीचे पाए होना जरूरी है You have to be under a man or a woman of God. और आपको प्रभु के दास या दासी के नीचे होना आवश्यक है The anointing which is there on their life और उनके जीवन के ऊपर जो अभिषेक है will cover you and protect you. वो आपको सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. So it is very important to be under a spiritual covering. तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक आत्मिक छत के नीचे रहें। The second thing that I taught you was the word of God says in 1 Peter 5:8, और पहला पत्रस 5:8 में परमेश्वर का वचन यह कहता है be sober and be vigilant. कि जागते रहो और सचेत रहो। Hallelujah. So हमें हमेशा जागते और सचेत रहना है. Be sober, be vigilant. तो जागते रहो और सचेत रहो Because your adversary, the devil, walks about as a roaring lion. क्योंकि तुम्हारा दुश्मन वो सिंह के समान वो गरजने वाला है Seeking whom he may devour. कि वो किसको पाए और फाड़ खाए। You know, Satan is very serious about his business. और शैतान अपने व्यवसाय को लेकर के बहुत ही गंभीर है What is his business? और उसका व्यवसाय क्या है His only agenda is to steal, kill and destroy. और उसका एजेंडा ये है कि वो घात करे, चोरी करे और नाश कर दे। Hallelujah. He wants to steal your joy. और वो आपके खुशियों को चुराना चाहता है। He wants to kill your vision. वो आपके दर्शन को मारना चाहता है And he wants to destroy your soul. और वो आपके आत्मा को मारना चाहता है। And he is very active when it comes to these things. और जब वो इन बातों के लिए वो बहुत ही गंभीर है। So we need to be more serious about our spiritual lives. तो हमें अपने आत्मिक जीवन को लेकर ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता The है। moment we are lazy, the devil is going to attack और us. जब हम आलस में होते हैं तो उसी समय शैतान आपके ऊपर हमला करेगा He is waiting for you to become lazy in the spirit. और वो वेट कर रहा है कि आप कब जो है आत्मा में आलस हो जाए He is waiting for you to get discouraged in the और spirit. वो चाहता है कि वो इंतजार करे कि कब आप आत्मा में आप निराश हो जाए। The moment you stop praying, और जब आप प्रार्थना करना बंद कर दें the moment you stop worshiping the और Lord, जिस समय आप आराधना करना बंद कर दें the moment you stop reading the word, और जिस समय आप वचनों को पढ़ना बंद कर दें get ready. तो आप तैयार हो जाइए Because the enemy is going to attack you. क्योंकि शैतान उसी वक्त आप पर हमला करेगा। One of the signs, the early signs of a spiritual attack, और सबसे पहली बात कि आप आत्मिक युद्ध में है उसका संकेत यह है that you will start having weird dreams. कि आपको अजीबोगरीब सपने आने शुरू हो जाएंगे Any disturbance in the spiritual realm, और किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस जो कि आत्मिक आयाम में होता है even if it is a blessing from the Lord. और अगर वो परमेश्वर की तरफ से आशीष ही क्यों ना हो So any disturbance in the spiritual realm, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस जो आत्मिक आयाम में होता है any movement in the spiritual या realm, किसी भी प्रकार का आत्मिक आयाम में जो हलचल होती है the first signs you will see in your dreams. तो पहले संकेत आपको आपके सपने में मिलेंगे। So I was telling you, तो मैं आपको बता रहा था so when the enemy sees that you are lazy in the spirit, जब शैतान ये देखता है कि आप अपने आत्मा में सुस्त हो रहे हैं he will attack you. तो वो आप पर हमला करेगा। So to be an overcomer, तो उसके ऊपर विजय पाने के you लिए have to always be sober. तो आपको हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। Hallelujah. So in Hindi it says sachet, but अगर उसको सही से अनुवाद करें, सोबर का मतलब है कि इन योर राइट माइंड। सोबर का मतलब होता है अपने सही
दिमाग में, Hallelujah. In your right mind. अपने सही सोच विचार, सही A दिमाग में। person who is not in his right mind और जो व्यक्ति अपने सही सोच विचार में नहीं है, cannot be alert. वो सचेत नहीं हो सकता। So when the enemy starts to attack, तो जब शैतान हमला करना शुरू करता है, the first place he attacks is our thoughts. तो पहली जगह जहाँ पर वो हमला करता है वो आपके विचार। If you're disturbed in your thoughts, और अगर आप अपने विचारों में डिस्टर्ब हो जाते you हैं, won't be alert. तो आप सचेत नहीं हो सकते You won't be focused. और आप ध्यान केंद्रित नहीं रह That सकते। is why the word of God says, इसलिए परमेश्वर का वचन यह कहता be है sober, कि जागते रहो be vigilant. और सचेत रहो, Hallelujah. Because your adversary is like a lion waiting to attack you. क्योंकि तुम्हारा शत्रु वह सिंह के समान है जो इंतजार कर रहा है कि कब तुम को नाश कर दे। So the first key was be under a spiritual covering. तो पहली चाबी थी कि हमेशा एक आत्मिक छत के नीचे रहें, Obey your leaders and submit to them. अपने अगुवाओं की सुने और उनको समर्पण करें, Honor your leaders and your elders in the spirit. और आत्मा में अपने अगुवाओं का आदर करें, For they are keeping a watch over your soul. Hallelujah. As those who will have to give an account. क्योंकि वो आपके आत्माओं के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसका लेखा जोखा उनको परमेश्वर को देना होगा। And the word of God says, let them do this with joy. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो यह कार्य वो हर्ष के साथ करें। You know, if your shepherd is taking care of you with joy, he will do a good job. तो अगर आपका जो शेपर्ड है वो यह कार्य बहुत ही खुशी के साथ कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे से ये कार्य को करेगा। If you do any job with a glad heart, you do a good job. जो भी कार्य आप खुशी के साथ करते हैं उसमें आप अच्छा करते हैं। But the word of God says, do not trouble them. लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि उनको परेशान ना करो, Hallelujah. Because if they do it as if it is a burden, क्योंकि अगर वो बोझ के साथ इस कार्य को करेंगे, hallelujah, then maybe they won't be able to do a good job. तो हो सकता है कि वो यह कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाए। If they themselves are disturbed, अगर वो खुद ही निराश या डिस्टर्ब्ड है, hallelujah, then they will find it difficult to take care of you. तो वो आपका देख रेख सही प्रकार से नहीं कर सकते। So it is very important to obey your leaders in the spirit. इसलिए आत्मा में अपने अगुवाओं का आदर करना और उनकी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है, And to submit to them, to listen to them. और पूरे रीति से समर्पण करना और उनकी बातों को सुनना जरूरी है। You know, one thing I learned in my spiritual life, और मैं अपने आत्मिक जीवन में एक बात को सीखा that many times when I was learning under my pastor कि जब मैं अपने अगुवा के अंडर में बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा था and was training under him to be a leader, और मैं एक अगुवा के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था, so sometimes he would give me a direction which would make no sense. और कभी-कभी वो मुझे ऐसे निर्देश देते थे जिसका कोई मतलब नहीं बनता था, And I would maybe think that I have a better idea than what he has और told me. मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पास ऐसे विचार है जो उनके विचारों से बेहतर है। But now I have learned पर अब मैंने सीख लिया है that we have to obey our leaders, कि हमें अपने अगुवाओं की आज्ञाओं को मानना है, even if that does not make sense. या अगर वो कोई मतलब भी नहीं रखता तब भी, Hallelujah. Because there are certain insights that they have which we do not have. क्योंकि उनके अंदर अंतरात्मा में ऐसी बातें हैं जो शायद हमें नहीं समझ में आ रहा, There are certain experiences which they have which we do not have. और उनके पास कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हमारे पास नहीं है। So I praise the Lord. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ Even at that time, कि उस समय भी I had the wisdom to not question my leader. कि उस समय भी मेरे पास ये बुद्धिमत्ता थी कि मैं अपने अगुवाओं को के सामने कुछ प्रश्न ना करूं, Whatever he said, और वो कुछ भी कहते थे, even if it was difficult for me, और वो शायद मेरे लिए संघर्षपूर्ण भी था, it was a line which was drawn in the stone. और वो ऐसे था मानो कि एक पत्थर में एक लकीर खींच दी गई पत्थर हो, की लकीर के समान था. And whatever he used to say, और वो जो कुछ भी कहते थे, even if I had better ideas, और मेरे पास शायद उससे ज्यादा अच्छे विचार थे, even if it did not make sense to me, और शायद मुझे कुछ इसका मतलब समझ में भी नहीं I आता would था, honor my leader. तो भी मैं अपने अगुवा का आदर करता था। Hallelujah. Praise the Lord. And those things have really blessed me.
और वो सारी बातों ने मुझे सही में आशीषित किया है। I'm telling you the keys in how to really prosper in the spirit. और मैं आपको बता रहा हूँ आत्मिक चाबियां कि आप कैसे आत्मा में और भी बढ़ सकते हैं। If you keep questioning your leader, अगर आप अपने अगुवाओं को के सामने प्रश्न करते रहेंगे if you keep, having arguments with them, और उनसे बहस करते रहेंगे, they will try their best to help you out. तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आपकी मदद करने के लिए, But you will not be able to receive the full measure of anointing and blessings that they have for you. लेकिन उनके पास जो आपके लिए आशीषें और अभिषेक रखे हुए हैं वो आप पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाइएगा। It is a real skill to draw the anointing from your leader. और अपने अगुआ से अभिषेक को खींचने के लिए वो एक बहुत उसमें सामर्थ लगती है। I have seen in the church, और मैंने कलीसिया में देखा है, some people are like stone. कुछ लोग वो पत्थर के समान हैं। So if you throw a stone in water जब आप पत्थर को पानी में फेंकते हैं and then you take it out, और जब आप उसको वापस निकालते हैं it will dry up very quickly तो वो तुरंत ही सूख जाती है, because it has not soaked up any water. क्योंकि उसने कोई भी पानी को वो सोखा नहीं It है, does not have the capacity to soak any क्योंकि water. उसके पास वो सामर्थ नहीं है वो पानी को सोखे। Some people's hearts are like stone, और कुछ लोगों के जो हृदय है वो पत्थर के समान है। and if your heart is hard, और अगर आपका हृदय कठोर है you will find it difficult to absorb anointing. तो आप अभिषेक को सोख नहीं पाएंगे, You will find it difficult to absorb the blessings that are there for you. तो आपके लिए जो आशीषें रखी हुई है उसको आप सोख नहीं पाइएगा। But we have to be like a sponge. लेकिन हमें स्पंज की तरह होने की जरूरत है। Many of us have magic sponge in our kitchen. और हम में से कई लोगों के पास जादुई स्पंज किचन में रखी हुई है, And some of them are very amazing. और कुछ तो बहुत ही अद्भुत है। If you take a bucket of water, अगर आप एक बाल्टी पानी लीजिएगा take that magic sponge, और वो मैजिक स्पंज को लीजिएगा put it in the bucket of water, और उस बाल्टी पर पानी में डाल दीजिएगा, it will soak up that 20 liter of water. तो वो पूरे 20 लीटर पानी को वो सोख लेगा। And you will be amazed. और आप हैरान रह This जाइएगा little piece of sponge, कि ये एक छोटा सा टुकड़ा स्पंज का how come it has soaked up so much of water? वो इतने सारे पानी को कैसे सोख सकता है, It has the capacity to absorb. क्योंकि उसके पास वो क्षमता है कि वो सोख ले उस पानी को। We have to be like sponge. और हमें स्पंज की तरह होने की आवश्यकता है। Hallelujah. The people who are like sponge are really blessed. और जो लोग वो स्पंज की तरह है वो सही में आशीषित हैं। I tried my level best to be like a sponge. और आप जानते हैं कि मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं वो स्पंज के समान बनूं, When I sit with my elders, क्योंकि जब मैं अपने बड़ों के साथ अगुओं के साथ बैठता हूँ I speak less and I listen more. तब मैं कम बोलता हूँ और सुनता ज्यादा हूँ। And I want them to just speak and speak और and मैं teach. चाहता रहता हूँ कि वो बोलते ही रहे और बोलते ही रहे। And I am like a sponge in the spirit. और मैं आत्मा में स्पंज के समान हो जाता I हूँ absorb whatever I can absorb. और मैं सब कुछ सोख लेता हूँ जितना मैं सकता हूँ। You know what happens? क्या आपको पता है कि क्या होता है? The anointing which is flowing in their life, कि उनके जीवन में जो अभिषेक बह रहा है it starts to flow in your life. वो आपके जीवन में भी बहना शुरू हो जाती है। And here's the thing with the anointing. और अभिषेक के साथ ये बात है If you really honor your कि leaders, अगर आप वाकई में अपने अगुवाओं के आदर करते हैं you'll start walking in double measure of तो anointing. आप दुगने अभिषेक में आप चलना शुरू कर देंगे। Now that, hallelujah, let's give a mighty clap offering to the Lord. हालेलुया। Now that is not the topic of the sermon today. और आज के प्रचार का मुख्य जो बात है वो ये नहीं है। So some of you must be wondering, तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे how come is it biblical? कि ये बाइबल से जुड़ी हुई कैसे है। So I will give you the example of Elijah and Elisha. और मैं आपको एलाइजा और एलीशा के विषय में उदाहरण दूंगा। Elisha was faithful to Elijah. एलीशा वो एलाइजा के प्रति बहुत ही वफादार था And Elijah tried to check him. और एलाइजा ने कोशिश की कि वो उसकी परीक्षा ले He tried to discourage him many और times. उसने बहुत कोशिश की कि वो निराश हो जाए, But he was there with his master till the end. लेकिन वो अपने जो
मास्टर थे उसके साथ वो लास्ट तक बना He was रहा there with his spiritual father till the end, और वो अपने आत्मिक पिता के साथ अंतिम समय तक था no matter how difficult it became. और ये मायने नहीं रखती कि वो कितना संघर्षपूर्ण था And when Elijah was taken up to heaven, और जब एलाइजा को ऊपर स्वर्ग में ले लिया गया the mantle of Elijah came down. तो एलाइजा के का भार था वो नीचे आया Elijah का कोट जो है वो एलाइशा के ऊपर उतरा, and Elisha was filled with double measure of anointing that what Elijah had. और एलिशा के ऊपर जो अभिषेक था उसका दुगना भाग वो एलिशा को मिला Hallelujah. I'm telling you a secret. और मैं आपको एक रहस्य की बात So बताता the हूँ word of God says in Hebrews chapter 13 verse 17. इब्रानियों की किताब 13 के 17 में 13 के 17 में यूं लिखा है इस प्रकार से लिखा है, let them do this with joy. Let them do this with joy and not with grief. अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें न कि ठंडी सांस लेकर आनंद से करे ना कि ठंडी सांस लेकर के, for that would be of no benefit to you. क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं Hallelujah. Praise the Lord. So if we are like a stone and not receiving from our leader, और अगर हम पत्थर के समान हैं और अपने अगुओं से कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं always in a conflict with our leader, और अपने अगुओं से हमेशा हम मतभेद में रहते हैं not honoring our leaders, और हम उनको आदर नहीं दे रहे हैं the word of God says it will be of no benefit to तो you. परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो कोई लाभ का नहीं होगा Hallelujah. So the first thing was submit to your spiritual covering. The second thing is we have to be sober and vigilant. तो पहली बात थी कि हमें आत्मिक छत के नीचे रहना है और दूसरी बात थी कि हमें जागते रहना और सचेत रहना है The third point was Luke chapter 21 verse 36. और तीसरी बात है Luke chapter 21 verse 36. लूका 21 के Okay, let's read. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के समान खड़े होने के योग्य बनो Hallelujah. So the word of God tells us that we have to always be alert, watch always. और परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमें हमेशा सचेत रहना है And we have to pray always. और हमें हमेशा प्रार्थना करना है Hallelujah. So the third point is that we have to be always alert and always prayerful. और तीसरी बात यह है कि हमें हमेशा सचेत रहना और प्रार्थना करना है Now I'm going to give you the most important key today. और आज की रात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चाबी देने वाला हूँ Hallelujah. I told you the people who will come on Thursday will receive a bonus. और मैंने कहा था कि जो लोग गुरुवार की सभा में आएंगे उनको बोनस मिलेगी And this key is the most powerful key to lead a victorious spiritual life. और यह चाबी वह सबसे महत्वपूर्ण चाबी है ताकि एक आप जयवंत आत्मिक जीवन को जिए If you are victorious in your spiritual life, you will be victorious in every area of your life. अगर आप आत्मिक जीवन में जयवंत हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में जयवंत होंगे How many of you are excited to learn about it? और कितने लोग उत्साहित हैं उसको सीखने के लिए Hallelujah. So the word of God tells us, तो परमेश्वर का वचन यह कहता है seek first the kingdom of God कि पहले परमेश्वर के राज की खोज करो and his righteousness, और उसकी धार्मिकता and all these things shall be added unto you. और बाकी सारी बातें तुम्हारे लिए कर दी जाएगी Praise the Lord. When Jesus started to preach, और जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया so he preached the gospel. तो उसने सुसमाचार का प्रचार किया So the gospel means good news. तो गॉस्पेल का मतलब होता है खुशखबरी What is this good news about? तो ये खुशखबरी किस बात के लिए है It is the gospel of the good news of the kingdom. और यह खुशखबरी स्वर्ग के राज्य के विषय में है Hallelujah. Jesus started to preach about the kingdom of God. और यीशु ने वह परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करना शुरू किया He came to this earth to fulfill kingdom business. और वो इस संसार में इसलिए आए ताकि स्वर्ग का राज्य का व्यवसाय
के विषय में वो व्यवसाय स्वर्ग के निकाय। राज के विषय में वो प्रचार कर सके। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्ग के राज्य का कार्य क्या था? मुझको और आपको बचाया जाना, पाप और श्राप के बंधन से बचाया जाना, और हमारा अधिकार जो छीन लिया गया था उस अधिकार को वापस हमें लौटाना। बिकॉज when God created man, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदमी की रचना की, He did not create man to be servants. तो उसने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की ताकि उसको सेवक बनाया जाए। God created man to be kings and to be rulers. और मनुष्य की रचना इसलिए की परमेश्वर ने ताकि उनको राजा बनाया जाए। And God gave us dominion over this earth. और परमेश्वर ने हमें सब बातों के ऊपर, इस पृथ्वी की सारी बातों के ऊपर अधिकार दिया है। Praise the Lord. The word of God tells us और परमेश्वर का वचन यह कहता है the heaven is the Lord's, कि स्वर्ग का राज्य वो परमेश्वर का है, but the earth He has given to man. किंतु यह संसार पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। The earth has been given to us to rule. और पृथ्वी हमें इसलिए दी गई है ताकि हम उस पर राज कर सकें। But that right to rule was taken away from us. लेकिन वह राज करने का अधिकार वो हमसे छीन लिया गया था। And Jesus came to restore that right और and ईश- our identity. और यीशु वो इसलिए आए ताकि हमारी जो पहचान छीन ली गई थी वह फिर से स्थापित हो और हमारा अधिकार वापस दे दिया He जाए। came to earth to restore the kingdom of heaven on this earth. और वह इसलिए आया ताकि स्वर्ग का राज को वह फिर से पृथ्वी पर स्थापित कर सके। Hallelujah. And then the word of God says, और उसके बाद परमेश्वर का वचन यह कहता है seek first the kingdom of God कि पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो and His righteousness, और उसकी धार्मिकता, and all things shall be added unto you. और बाकी सारी बातें तुम्हारे लिए कर दी जाएगी। What are these other things? और ये बाकी सारी बातें क्या है? The house that you're looking for. वह घर जो आप ढूंढ रहे हैं, Hallelujah. The house that you want to build. और वह घर जिसको आप बनाना चाह रहे हैं, That job that you want. वह कार्य जो आपको चाहिए, That business that you want to establish. और वह व्यवसाय जिसकी आपको जो आप स्थापना करना चाहते हैं, Hallelujah. The car that you're praying for. और वह कार जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, All of these are other things. और ये सारी बातें बाकी बातें हैं। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन यह कहता your है Father in heaven knows that you need all of these कि things. परमेश्वर जो तुम्हारा पिता है जो स्वर्ग में है वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, And it is God's will and it makes Him happy to bless you. और यह परमेश्वर की इच्छा है कि वह तुम्हें यह सब दे, और वह खुश होता है तुम्हें यह देने में। You know, there is no budget sessions in heaven. और स्वर्ग में किसी प्रकार का बजट सेशन नहीं होता, There is abundance in heaven. क्योंकि वहाँ बहुतायत है। Hallelujah. Even the streets of heaven are made up of यहाँ gold. तक कि सड़कें भी स्वर्ग की वह सोने की बनी हुई है। So if someone is praying for maybe a Mercedes car, और अगर कोई व्यक्ति है जो कि मर्सिडीज कार के लिए प्रार्थना कर रहा है, God can bless you with that. तो परमेश्वर वो आपको दे सकते हैं। Imagine if there was a meeting in heaven और सोचिए कि अगर कोई स्वर्ग में किसी प्रकार की मीटिंग हो रही होगी that Simi wants a Mercedes car. कि सिम्मी वह मर्सिडीज कार चाहती है, And Father God is asking all the elders and angels, और परमेश्वर पिता वो सारे स्वर्गदूतों को पूछ रहे हैं I really want to bless Simi with a Mercedes, कि मैं सही में चाहता हूँ कि सिम्मी को मैं मर्सिडीज कार दूं, with the sports edition. स्पोर्ट्स एडिशन कार। Do we have the budget for it? तो क्या हमारे पास उसके देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? I want to bless Anju with a new house. और मैं चाहता हूँ कि सिस्टर अंजू वो उनको एक नया घर मिले, Do we have the budget for it? तो क्या हमारे पास पर्याप्त बजट है? Peter, bring up the accounts. पतरस, तुम अकाउंट को लेकर के आओ Let's see how much balance of blessings we have. और देखते हैं कि कितना बैलेंस बचा हुआ है आशीषों का। Hallelujah. You will never hear about these things. और आप स्वर्ग में ऐसी कोई बात को नहीं सुनेंगे, There is never a budget meeting in heaven. क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की बजट मीटिंग नहीं होती है, Because there is abundance in heaven. क्योंकि वहाँ पर बहुतायत है। Big things for us are nothing for the Lord. जो बातें हमारे लिए बड़ी है वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। The word of God says, और परमेश्वर का वचन यह कहता Lord, है the earth belongs to you.
कि the earth belongs to you. कि जो संसार है वह मनुष्य का है। नहीं, प्रभु ये संसार तेरा है, प्रभु ने हमें दिया है, पर प्रभु ये संसार तेरा है और इसमें जो कुछ है वो सब तेरा है। हालेलुया। So acres of land belongs to the Lord. तो एकड़ और एकड़ जो जमीन है वो परमेश्वर का है। Lord can bless you with the land that you're praying for. और परमेश्वर उस जमीन से आपको आशीषित कर सकते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। He can bless you with every blessing that you need. और जो भी आशीष आपको चाहिए उससे वो आपको आशीषित कर सकते हैं। That big breakthrough that you're looking for और वो छुटकारा जो जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं is only a small thing for the Lord. वो परमेश्वर के लिए बहुत छोटी बात It is है। nothing for the Lord. वो परमेश्वर के लिए वो बहुत ही छोटी बात है। But the thing is, लेकिन बात यह है He only blesses us when we are able to handle that blessing. वह तभी हमें आशीषित करता है जब हमारे अंदर वो क्षमता होती है कि हम उन आशीषों को संभाल सकें। Hallelujah. If that Mercedes puffs me up with pride, अगर वह मर्सिडीज कार मुझे घमंड से भर दे then that is not a good thing for me. तो वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। If the Lord sees that Mercedes will fill me up with pride, और अगर परमेश्वर यह देखता है कि वह मर्सिडीज कार मुझे घमंड से भर देगी, then when Simi comes to the church, और जब सिमी कली से आती है she's not talking with anyone. तो वह किसी से बात नहीं कर रही है She's like, I come in a Mercedes. और वह कहती है कि मैं मर्सिडीज कार में आ I रही am हूँ। high class now. अब मैं बहुत ही ऊंचे समाज में बहुत ऊंचे क्लास की हो I गई will हूँ not even talk to the bishop. और मैं बिशप से भी बात नहीं करूंगी। He's coming in a broken Santro. वो तो पुरानी सैंट्रो कार में आते हैं, He's low class now. अब वो बहुत ही लो क्लास हो गए हैं Hallelujah. Simi is not talking to anyone. और सिमी किसी से बातें नहीं कर रही है। Praise the Lord. This is just a joke. ये केवल एक मजाक है। So if the Lord sees तो अगर परमेश्वर यह देखते हैं that any blessing that is released in our life कि कोई भी आशीषें जो हमारे जीवन में दी जाती है is causing problems in our spiritual life, वह हमारे आत्मिक क्षेत्र में वह डिस्टरबेंस लेकर के आ रहा है or causing us to backslide, या फिर हमें फिर से पीछे ढकेल रहा है, हालेलुया, आत्मा में पीछे ढकेल रहा है, हमारे आत्मिक पतन का कारण हो रहा है, तो प्रभु उन आशीषों को हमें नहीं देते। प्रभु वही आशीषें हमारे जीवन में रिलीज करेंगे जिनको हम संभाल सकते हैं। Praise the Lord. But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है seek first the kingdom of God कि पहले परमेश्वर की राज की खोज and करो his righteousness, और उसकी धार्मिकता भी, and all the other things shall be added unto और you. बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए कर दी जाएगी। If we go to Matthew chapter 28, और मत्ती के 28 अध्याय में we see what the Lord means by these things. हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या बातें कर रहे हैं इन चीजों के विषय We में। have to go to Matthew chapter 28 verse 18. मत्ती 28 के 18 में हम जाएंगे। So Jesus came to this earth on kingdom business. तो यीशु यहाँ इस संसार में इसलिए आए ताकि वो स्वर्ग के राज के कार्यों को पूरा कर सके, And then that work was handed over to the church. और उसके बाद ये सारा कार्य वो कलीसिया को दी गई। So there's still kingdom work which has to be done. तो अभी भी स्वर्ग के राज्य के कार्य बचे हुए हैं जिसको पूरा करना है, Everything is about the kingdom. और सारी बातें वह राज्य के विषय में है। Hallelujah. So what is the kingdom business? तो ये स्वर्ग के राज्य का कार्य क्या है? Let's read Matthew chapter 28 verse 18. और हम मत्ती 28 के 18 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, all authority in heaven and on earth has been given to me. आगे पढ़े। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So go into all the world and make disciples. Teach the people about the word of God. और लोगों को परमेश्वर के वचन का शिक्षा दो। Tell them about the love of God. और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताओ। Tell them that God is not angry with you, और उनको बताओ कि परमेश्वर तुमसे नाराज नहीं but है, He loves you किंतु वह तुमसे प्रेम करते हैं and He calls you His children. और वो तुम्हें अपने संतान कहता है। Hallelujah. So He says, go into all the world and teach them about the love of God. और वो कहते हैं कि पूरे संसार में जाओ और परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताओ। Teach them how to walk with the Lord. और उनको सिखाओ कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। Let's read from verse number 20.
20 पद को पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Hallelujah. Teach them to obey everything. और उनको सिखाओ कि वो सारी आज्ञाओं को माने। And surely I am with you always to the very end of the age. और निश्चय ही मैं अंतिम समय तक तुम लोग के साथ हूँ। So this is kingdom business. तो ये स्वर्ग राज्य का कार्य है। So Jesus has gone to be in the presence of the Father. और उस यीशु को उठा लिया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति में है वो। And the church is waiting for the Lord to return. और कलीसिया वो इंतजार कर रही है कि प्रभु कब वापस आएंगी। But till the time we are waiting, लेकिन जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, we have work to do. तो हमारे पास कार्य है कि हम उसको पूरा करें। We have to tell the world about the love of God. और हमें संसार को बताना है परमेश्वर के प्रेम के विषय में। Hallelujah. This is the burden which should be there on the church. और कलीसिया के ऊपर यह बोझ होना चाहिए। There should be the fire which should be there in our bones. और यह हमारे के अंदर ये आग ये जलती रहनी चाहिए। Hallelujah. Now, if we align our lives with the will of God, और जब हम अपने जीवन को वो परमेश्वर की इच्छा के साथ में मिलाते हैं, that is the safest place for us to be. तो वह हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है जहाँ हमको होना चाहिए। Hallelujah. You know, if a government service government officer when he is on duty, और जब कोई एक सरकारी सेवक जब वो ड्यूटी पे होता है, nobody can harm him, तो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, nobody can disturb him. और उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। He has got special authority and special rights from the government. क्योंकि उसके पास सरकार की तरफ से खास अधिकार है। Hallelujah. That is why everybody wants to become a government official. और इसीलिए हर कोई सरकारी सेवक बनना चाहता है। Anybody who tries to come against a government official, और जो कोई भी इनके खिलाफ जो खड़ा होता है, government sees it as if they are coming against the government itself. तो सरकार वो इस तरह से इसको देखती है मानो वो व्यक्ति खुद ही सरकार के खिलाफ खड़ा है। Hallelujah. So if the worldly government is so serious about his people, अगर सांसारिक सरकार वो अपने लोगों के प्रति इतने गंभीर है, then think about the kingdom of heaven. तो सोचिए स्वर्ग के राज्य के विषय में। If you are fulfilling kingdom business, अगर आप स्वर्ग के राज्य के सारे कार्यों को पूरी कर रहे हैं, if you're fulfilling the will of God on this earth, और आप इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, no demon of hell can touch you. तो नरक की कोई भी आत्मा आपको परेशान नहीं कर They पाएगी, cannot touch you. वो आपको छू भी नहीं सकेगी। Hallelujah. Why? Because you are on kingdom business. क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग के राज्य के कार्य को पूरा कर रहे हैं। Any demon who tries to touch you, और ऐसी कोई भी दुष्ट आत्मा जो आपको छूने की प्रयास करेगी, the entire armies of the kingdom of heaven will come against them. तो स्वर्ग की पूरी सेना उसके खिलाफ वो युद्ध करने आ जाएगी। Praise the Lord. The other advantage of doing kingdom businesses, और दूसरा एडवांटेज स्वर्ग के राज्य के कार्य को पूरा करने के लिए you जो will है have special favors from the Lord. कि आपके पास परमेश्वर की ओर से खास फेवर्स होंगे। Hallelujah. You see, if a person who is working in the private sector, जो लोग वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, they always look at the benefits of a government official. वो हमेशा सरकारी सेवकों के वो बेनिफिट्स को वो देखते रहते हैं। So a government official has health insurance, तो एक सरकारी सेवक के पास वो हेल्थ इंश्योरेंस है, special medical benefits, उनके पास मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, leave travel allowance, और वो जब घूम रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, उसके भी अलाउंसेस उनको maybe मिलते a हैं, bungalow, और उनको बंगला भी मिलते हैं, maybe a car, उनको कार भी मिलता है, and many such benefits are given to them. और बहुत सारी खास बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। So the government takes care of its officials. तो सरकार वो अपने सेवकों का वो ख्याल करती है। Hallelujah. So when you are on kingdom तो business, जब आप स्वर्ग के राज के कार्यों को कर रहे होते हैं, you don't have to worry about your तो life. आपको अपने जीवन के विषय में आपको चिंता करने की You आवश्यकता will नहीं have है, many benefits from the kingdom of heaven. क्योंकि आपको स्वर्ग के राज से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। Kingdom of heaven is going to give you a bungalow, और जो स्वर्ग का राज है वो आपको एक बंगला देगा, car, कार देगा, your phone will be free, आपके फोन्स वो फ्री होंगे, your ration will be free. आपके राशन वो फ्री होंगे, Hallelujah.
all your provisions will come from the kingdom of heaven. सारा प्रावधान वो स्वर्ग के राज्य से आपके लिए पूरा किया जाएगा. Praise the Lord. So, now this is not literal. ये ऐसा नहीं है कि कल आप बैठे कि हम स्वर्ग का राज्य में, अभी मेरा गाड़ी आएगा, मेरा बंगला आएगा. विश्वास से चलना होता है. हालेलुया. कितनों को समझ में आ रहा है? Praise the Lord. So, the best place for us to be is aligned with the purpose of the kingdom of God. और स्वर्ग के राज्य के जो परमेश्वर की इच्छा है उसके साथ में हमारी सहमति होनी चाहिए. वही हमारे लिए सुरक्षित स्थान है. Hallelujah. But it is not easy. लेकिन वो सरल नहीं है. It takes real commitment. और उसके लिए कमिटमेंट होने की जरूरत है. Sometimes it becomes very difficult. और कभी-कभी ये बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है. If someone comes and tells you, कोई आएगा और आपसे कहेगा, start walking with the Lord, कि परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दो and everything will be easy for you. और तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा. Hallelujah. I'm going to tell you something different तो today. मैं आज आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ. The day you decide that I'm going to serve the Lord, और जिस दिन आप ये निश्चय कर लेते हैं कि आपको परमेश्वर की सेवा करना है, and I will not just go to church and sit, और मैं केवल कलीसिया में जाकर के बैठा नहीं रहूंगा, but I'm going to be someone who rises up and works to save souls. लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँगा जो उठ करके आत्माओं को बचाने वाला हूँगा. I'm going to serve in the church. और मैं कलीसिया में सेवा दूंगा. I'm going to be the one who shares the gospel. और मैं सुसमाचार का प्रचार करने वाला हूँगा. The moment you decide to do that, और जब आप इस बात की निश्चय करते हैं, you're stepping into great authority, तो आप एक बहुत बड़े अधिकार के क्षेत्र में पांव रख रहे हैं, and you're stepping into great blessings. और आप एक बहुत ही बड़े आशीषों के क्षेत्र में पांव को रख रहे हैं. But it will test you to the limits. लेकिन आपकी परीक्षा ली जाएगी. You will be tested to the limits. और आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाएगी. Let's learn from Paul. और पौलुस से सीखे. Paul was a person who used to persecute Christians. और पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो मसीहियों का विरोध करता था. He was a government official. और वह एक सरकारी सेवक था. And he was very wise. और वो बहुत ही बुद्धिमान था. He had special authority from the Jewish leaders. और यहूदी अगुवाओं की तरफ से उसको एक खास अधिकार मिला हुआ था. And he used to hate Christians. और वो मसीहियों से वो नफरत करता था. When Stephen was being stoned to death, और जब स्टीफन के ऊपर पथराव किया जा रहा था, and he was killed, और उसे मार दिया गया, Paul was there overseeing everything. और पौलुस वहां था और वो सारी बातों को देख रहा था. Hallelujah. You know what Stephen was doing? क्या आपको पता है कि स्टीफनुस क्या कर रहा था? Stephen was praying for Paul. स्टीफन वो पौलुस के लिए प्रार्थना कर रहा था. The prayers of the righteous are very powerful. और धर्मी जन की प्रार्थना वो बहुत ही प्रभावशाली होती है. At that time he was called Saul. और उस समय उसको शाऊल पुकारा जाता था. He was considered a very wise person. और वो बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था. And he was seeking out Christians to put them into prison. और वह मसीहियों को ढूंढता था कि उसको पकड़ करके वो उनको जेल में डाल दे. One day he was on his road to Damascus. और एक दिन वह दमास्कस की ओर जा रहा था. Suddenly a great light it shined on him. और एक बहुत बड़ा प्रकाश उसके ऊपर चमकी. And he heard a voice, a thundering voice. और उसने गर्जन भरी आवाज को सुना. And that voice asked him. और उस आवाज ने उससे पूछा, Saul, Saul, why do you persecute me? कि शाऊल, शाऊल तू मुझे क्यों प्रताड़ित करता है? And Saul was so afraid. और शाऊल इतना डर गया. He fell down from his house. और horse. वो अपने घोड़े से गिर गया. And he asked, और उसने पूछा, Who are you, Lord? कि हे प्रभु तू कौन है? I have not persecuted you. और मैंने तो तुझे प्रताड़ित नहीं किया. And then Jesus said, और यीशु ने कहा, I am Jesus. कि मैं यीशु हूँ. When you're persecuting the church, क्योंकि जब तू कलीसिया को प्रताड़ित करता है, you're persecuting me. तो तू मुझे प्रताड़ित करता है. I have come to meet you now. और मैं तुझसे मिलने आया हूँ. So tell me now. तो अब तुम मुझे बताओ. I am the God of heaven and earth. क्योंकि मैं ये स्वर्ग और धरती का परमेश्वर हूँ. I've come in person to meet you today. और मैं खुद ही तुमसे मिलने आया हूँ. Why are you persecuting me? क्यों तू मुझे प्रताड़ित करता है? And Saul was broken. और शाऊल वो टूट गया. When he was persecuting Christians, क्योंकि जब वह मसीहियों का विरोध कर रहा था, he thought he was serving God. तो उसे लग रहा था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है. Now God himself was there. अब परमेश्वर खुद वहाँ है. And he was asking him, और वो उससे पूछ रहा है,
You are not serving me, you are persecuting me. कि तू तो मेरी सेवा नहीं कर रहा है, तू तो मुझे प्रताड़ित कर रहा Why है, are you persecuting और me? तू मुझे क्यों प्रताड़ित करता है? Saul was heartbroken. और शाऊल वह टूट गया, Something broke inside of him. और उसके अंदर कुछ टूट गया। Hallelujah. And you know, when he got up, और जब वो उठा he could not see. तो वो देख नहीं पा रहा था। So the Lord told him, तो परमेश्वर ने उससे कहा go into the city. कि तुम नगर में जाओ, My servant is there. और मेरे सेवक वहां हैं, He will pray for you और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना and करेगा, you will start seeing again. और तुम फिर से देखने Once लगोगे। you start seeing, और जैसे ही तुम देखने लगोगे you will no longer be Saul. तो तुम शाऊल नहीं कहलाओगे, You will be called Paul. तुम पौलुस कहलाओगे। Because when your eyes are opened, क्योंकि जब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी it will not just be your physical eyes which will be तो opened, वो तुम्हारे फिजिकल आंखें नहीं होंगी जो खुलेंगी, but your spiritual eyes will be opened as लेकिन well. तुम्हारे आत्मिक आंखें भी खुल जाएगी। And when your spiritual eyes are opened, और जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी you will no longer be the old person. तो तुम पुराने व्यक्ति नहीं रह You will जाओगे, become a new person. तो तुम एक नए व्यक्ति बन जाओगे। Hallelujah. Only Jesus can do that. केवल यीशु ही यह कर सकते He हैं। can take away our old corrupted person, तो वह हमारे पुराने व्यक्तित्व को निकाल करके, पुराने खराब व्यक्तित्व को निकाल करके हमें नया व्यक्तित्व दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु ऐसा कर सकते हैं, हालेलुया। केवल वही हमें नई शुरुआत दे सकते हैं। सो यीशु ने उसको कहा कि तुम पुराने साल नहीं रहोगे, तुम पॉल रहोगे, और तुमको मैंने चुना है कि तुम मेरे सुसमाचार को इस जगत के छोर तक लेकर के जाओगे। हालेलुया। सो बेसिकली जीसस टोल्ड हिम, तो यीशु ने उससे कहा you are coming against the kingdom, कि तुम स्वर्ग के राज के खिलाफ खड़े हो रहे हो, but now I choose you लेकिन अब मैं तुम्हें चुनता हूँ that you will be on kingdom business. कि तुम स्वर्ग के राज्य के कार्य को पूरा करोगी। And when Paul came to the realization और जब पौलुस ने इस चीज को समझा that he had an encounter with the real God of heaven and earth, कि उसका आमना सामना वास्तविक परमेश्वर जो कि परमेश्वर जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है उससे हुआ है। हालेलुया, उसका सामना यीशु मसीह से हुआ है। He completely surrendered his life to him तो उसने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया and he started to preach the gospel. और उसने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर That is दिया। why most of the New Testament has been written by a person who used to oppose Christ. और इसीलिए जो नया नियम है वो ज्यादातर उसके द्वारा लिखा गया है जो कि मसीह का विरोध करता था। Hallelujah. Just think about it. आप इसके विषय में सोचिए, A person who was opposing Christ, जो मसीह का विरोध करता था he wrote most of the New वो Testament. ज्यादातर नया नियम की किताबों को उसने लिखा है He gave us hidden secrets about the person of Jesus. और उसने यीशु के विषय में बहुत सारे रहस्य की बातों को बताया है। And Paul started to preach about Jesus. और पौलुस वो यीशु के विषय में प्रचार करने He used लगा to look for opportunities to tell about the love of God. और वह अवसरों को ढूंढता था कि वो परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताए। And let's read Acts chapter 20 verse 24. प्रेरितों के कार्य प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय उसका 24 पद। 20 का 24 में ऐसा लिखा है, But I do not account my life of any value nor as precious to myself. पढ़े। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई। So he was so committed to the gospel. तो वह सुसमाचार के प्रचार के विषय में वो इतना कमिटेड था He was so committed to the kingdom of God और परमेश्वर के राज के प्रति वो इतना कमिटेड था that he said, I do not account my life of any value. तो वो बोलता है कि मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने जीवन को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। आज हम लोग जब यहाँ पे बैठे हुए, कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मैं अपने जीवन को कुछ नहीं समझता। You know, many people come to church. और बहुत सारे लोग वो कलीसिया तो आते हैं They come to church for that job, और वो कलीसिया आते हैं कार्य करने के लिए, for the blessing of a new job. वो आते हैं ताकि उनको नए कार्य से उनको आशीषित किया जाए। So if I go to the church, the bishop will pray for me and I will be blessed with a new job. तो जब मैं कलीसिया आऊंगा तो बिशप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मुझे आशीषें मिलेगी एक नए जॉब के लिए। Many people come to the church for the blessing of a new baby. और बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया आते हैं ताकि उनको
नए उनको बच्चे मिले। Hallelujah. Many people come to the church for healing. और बहुत सारे लोग आते हैं चर्च वो ताकि उनको चंगाई मिले। Hallelujah. These are all side effects. ये सारे साइड इफेक्ट्स है These are not the real thing. और वो वास्तविक चीज नहीं है। This is just change in the kingdom. यह केवल स्वर्ग के राज्य में चेंज के समान है। Hallelujah. चिल्लर के समान है। चंगाई, आशीषें, ये सब स्वर्ग के राज्य में चिल्लर है। असली खजाना क्या है? असली खजाना यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को जो पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। प्रेज गॉड। सो पॉल कहता है, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट माई लाइफ। तो पौलुस यह कहता है कि मुझे अपने जीवन के विषय में चिंता नहीं है। आई अकाउंट माई लाइफ ऑफ नो वैल्यू। और मैं उसे कुछ भी नहीं समझता। I don't account my life precious to myself. और मैं उसे प्रिय नहीं जानता। What is important to me? और मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? Only I may finish my course and the ministry that I have received from the Lord Jesus. कि मैं अपनी दौड़ को और सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर But गवाही tonight देने when you're के लिए। sitting here, पर जब हम यहाँ पर बैठे हुए and हैं if you're serious about the Lord, और अगर आप परमेश्वर के विषय में गंभीर है then your attitude should be like this. तो आपका विचार इस प्रकार से होना You should चाहिए। have that passion inside of you. आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए Even if I have nothing to eat, कि मेरे पास कुछ खाने के लिए ना हो, but my passion is to serve the Lord of heaven. लेकिन मेरे अंदर वो आग है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। If I have nothing to eat, मेरे पास कुछ खाने के लिए ना हो I'm not concerned about that. तो मैं उसके लिए चिंता नहीं करता। My concern is that I have to preach the gospel. मेरी चिंता यह है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। My concern is that I have to preach the gospel to the lost souls. और मेरे जो विचार है वो यह है कि मैं खोए हुए आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार करूं। My concern should be that I have to empty hell and fill up heaven. और मेरी चिंता यह है कि मैं नर्क को खाली कर दूं और स्वर्ग को भर दूं। My concern should be that in my lifetime I want to see my great country saved. और मेरी चिंता यह होनी चाहिए कि मैं अपने जो देश है उसको बचाया हुआ देखूं। हालेलुया। कि भारत उद्धार को प्राप्त करे, भारत यीशु के प्रेम को जाने। मेरा कंसर्न ये होना चाहिए। मेरा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास खाने के लिए है, रहने के लिए गाड़ी है, नहीं है, मैं क्या सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। God is looking for those people who have that kind of fire in their bones. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर ये आग सुलग रही है। He's not looking for people who come to the church for time pass. और वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं जो कि टाइम पास करने के लिए केवल कलीसिया आते हैं। This is very serious business. और ये बहुत ही गंभीर बात है। You know, without the gospel, people are going to hell. क्योंकि बिना सुसमाचार के लोग वो नर्क में चले जाएंगे। Hallelujah. Many families are breaking down because they do not know Jesus. बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। Many people are suffering under the power of darkness because they do not know the light of the gospel. और बहुत सारे लोग इसलिए भी वो सफर कर रहे हैं क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते, वो सुसमाचार को नहीं जानते। Hallelujah. वो परमेश्वर की ज्योति को नहीं जानते, इसलिए वो पीड़ा में है। और पौलुस कहता है, मैं अपने जीवन को कुछ नहीं समझता। मेरे अंदर एक आग है और वो आग ये है कि मैं सुसमाचार को प्रचार करूं। मैं सुसमाचार को प्रचार करूं। हालेलुया। आज आप अगर चिंता कर रहे हैं अपने घर के लिए, सुसमाचार को प्रचार करना शुरू करिए। परमेश्वर के राज्य के उद्धार के सुसमाचार को प्रचार करना शुरू करिए। आपके घर को परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। When you take care of God's business, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कार्यों को संभालते हैं God will take care of your business. तो परमेश्वर आपके कार्यों को संभालेंगे। When you build the kingdom of heaven, और जब आप परमेश्वर के राज्य को निर्माण कर रहे होंगे God is going to build your house. तो परमेश्वर आपके घरों का निर्माण कर रहे When you होंगे। bless the children of heaven, और जब आप ये स्वर्ग के लोगों को आप आशीषित कर रहे God होंगे is going to bless your children, and that blessing will last from generation to generation. तो परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित कर रहे होंगे और वो पीढ़ी के बाद पीढ़ी तक चलती जाएगी। You know the work that you do in the kingdom today, और आज जो काम वो आप स्वर्ग के राज्य में कर रहे हैं,
your children's grandchildren will reap the benefits of तो that. आपके बच्चे नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ी भी उसके आशीषों को पाएंगी। Now let's see what kind of difficulties Paul had. तो हम देखते हैं कि पौलुस का के लिए क्या क्या कौन कौन सी बातें संघर्षपूर्ण थी। Let's go to 2 Corinthians chapter 11, read from verse 23. दूसरा कोरिन्थियों, So when he says that I don't consider my life anything, तो जब वो कहता है कि मैं अपने जीवन को, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, he is not joking. तो वो मजाक नहीं कर रहा, He's serious about it. वो इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर When he है। says I have a passion to preach the gospel, और जब वो कहता है कि मेरे अंदर आग है जो सुलग रही है वचन के प्रचार के लिए, he's serious about that. तो वो उस बात को लेकर गंभीर है And his testimony proves it. और उसकी गवाही इस बात को साबित करती है। Let's read from 2 Corinthians chapter 11 verse 23. सब लोग फटाफट एकदम करेंगे, धीरे धीरे नहीं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। Hallelujah. I am more. I have worked much harder. मैंने ज्यादा मेहनत की है, मैं कैद खाने में ज्यादा रहा हूँ, मुझे कोड़े मारे गए हैं और मैंने मृत्यु का सामना बार बार किया है। 24 पद में इस प्रकार से लिखा, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 5 बार मुझे हालेलुया कोड़े मारे गए, 3 बार मुझे लाठियों से पीटा गया, 1 बार मुझ पे पत्थरवाह किया गया, 3 बार मैं जिस जहाज में था वो जहाज डूब गया, 1 रात और 1 दिन में खुले समुद्र में रहा। I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों में से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। Hallelujah. वो जहां भी जाता है, he's saying that मैं जोखिम में रहा। I have been in danger. I've been in danger in the city. I've been in danger in the village. I've been in danger on the land. I've been in danger in the sea. Wherever I have been, I've been in danger. मैं हर जगह खतरों में रहा हूँ। शहर में मैं खतरे में रहा, मैं गांव में खतरे में रहा, मैं समुद्र में खतरे में रहा, मैं जमीन पर खतरे में रहा, मैं सोने गया तो खतरे में रहा, मैं जागा तो खतरे में रहा, मैं जब भाइयों के बीच में था तो खतरे में रहा, मैं जब अकेले था तब खतरे में रहा, और मैं खतरों में रहा। लेकिन मेरे अंदर एक आग है और वो आग मुझे रुकने नहीं देती है, और वो आग ये है कि मैं वो यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार को प्रचार करूं, और जब तक मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक ये आग मुझे रुकने नहीं देगी। आज कलीसिया में आपसे पूछता हूं कि जब आप बैठे हुए, क्या पौलुस के समान वो आग आपके अंदर है, या आप इस बात से रुक जा रहे हैं कि प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दी, कि प्रभु ने जिस व्यक्ति से मेरी शादी होनी थी उससे शादी नहीं हुई, कि जो जॉब मुझे मिलनी थी वो जॉब मुझे नहीं मिली, कि किसी ने आकर के मुझे कुछ कह दिया, या मेरे जीवन में कुछ ठेस लग गई। हालेलुया। कि मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा था और मेरा घर अभी तक नहीं बना, जब घर बनेगा तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। किस बात के लिए आप रुके हुए हैं? किन बातों ने आपको अड़ंगा लगा दिया? पौलुस कहता है कि मैं अपने जीवन को, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मेरे एक अंदर एक आग है कि मैं सुसमाचार के प्रचार को। और अगर आपके अंदर वो आग नहीं है तो आप टाइम पास कर रहे हैं। I'm going to be very serious this evening. और आज की शाम में बहुत ही गंभीर हूँ। This is not a joke. ये मजाक नहीं है, We are on kingdom business. क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के कार्य को पूरा We कर have to रहे हैं, learn from Paul. और हमें पौलुस से सीखने की We आवश्यकता have to है। learn from the people who have gone ahead of us. और जो लोग हमारे आगे चले गए, अपने अगुवाओं से सीखने की आवश्यकता है। Hallelujah. They have served the Lord with tears and with sweat and with blood. तो हमें खून वो और अगुए पसीने हमारे से, आगे गए हैं, उन्होंने आंसुओं से, पसीने से, अपने लहू से परमेश्वर की सेवा को पूरा किया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? वी लुक फॉर अ कंफर्टेबल सीट। अगर सीट कंफर्टेबल है तो फिर हम चर्च जाएंगे, अगर सीट कंफर्टेबल नहीं है तो चर्च छोड़ो ना, क्यों जाना है? अगर एसी है तब ठीक है, और अगर एसी नहीं है तो थोड़ा पसीना हम परमेश्वर के लिए नहीं उठा सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठा लिया और हम एसी को खोज रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? What are you hungry for?
आप किसके लिए भूखे हैं? What are you doing with your life? आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? आप इस संसार में जो कुछ भी है वो स्वर्ग में मायने नहीं रखेगा। आप एडवोकेट है, स्वर्ग में मायने नहीं रखता है। आप डॉक्टर है, स्वर्ग में डॉक्टरों का डॉक्टर मौजूद है, वो कुछ मायने नहीं रखता है। हालेलुया। आप इंजीनियर हैं, वहां पे एक से एक स्वर्गदूत है इंजीनियरिंग का काम करने के लिए, कुछ मायने नहीं रखता है। आप अकाउंटेंट है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बात मायने रखती है कि हमने यीशु के लिए क्या किया। पिता ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। पिता ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दे दिया। हमने उस बेटे के साथ में क्या किया, केवल वही मायने रखता है। हमने उस क्रूस के सुसमाचार को के साथ क्या किया, वही मायने रखता है। हमने कितनी आत्माओं को जीता, कितनों को यीशु मसीह के बारे में बताया, कितनों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताया, केवल वही मायने रखता है। केवल जो हम परमेश्वर के लिए करते वो मायने रखता है। कितनों को समझ में आया? बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। बाकी सब मेला है, खेल चल रहा है। एक दिन घंटी बजेगी और मेला खत्म हो जाएगा, हम स्वर्ग में होंगे। यहाँ पे किसके साथ में हमारी क्या कहा सुनी हुई थी, किसके साथ में हमारी क्या लड़ाई हुई थी, किसके साथ में हालेलुया हमने इस संसार में कितने बड़े बड़े ब्रिज बना दिए और बिल्डिंग बना दिए, कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आपको पूछना ही है तो जाकर के कब्रिस्तान में जाकर के पूछिए, बहुत सारी कब्रें मिलेंगी वहां पे। उनसे पूछिए कि चाची, आपकी आंटी ने आपको बुरा भला कहा था, उसका बदला लिया कि नहीं लिया? चाची कुछ नहीं बोलेगी। कुछ मायने नहीं रखता है, खत्म हो गया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? डॉक्टर साहब से जाके पूछिए, आपने इतना पैसा बनाया, वो पैसा कहां रखा है? वो डॉक्टर अगर बोल सकेगा तो बोलेगा, उन सब बातों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैं भी धूल हो गया, वो सारी बातें भी धूल हो जाएंगी। केवल यीशु ही सत्य है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। पाना ही है तो जब मौका है तो यीशु को पालो, और उसके बाद कुछ मायने नहीं रखता है। कितनों को समझ में आ रहा है? जीवन की सच्चाई को जाना है, कब्रिस्तान में जाके चुपचाप से बैठ जाइए। वहां जो लोग पहले से लेटे हुए उनसे पूछिए। हालेलुया। कई कहानियां वहां दफन है जिसका कोई मायने नहीं है, व्यर्थ है। आगे देखिए क्या लिखा है, गलातियों 2 अध्याय उसका 20 पर। गलातियों 2 का 20। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 7 पद से पढ़ेंगे। आर्यन सामने आ जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों कम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7 पद से पढ़े। 4 का 7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हमारे अंदर ये असीम खजाना, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी का बर्तन कौन है? मिट्टी के बर्तन हम और आप है। और ये हमारे अंदर खजाना क्या है? वो परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है। हालेलुया। परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें यीशु को दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमारी अपनी आत्मा हमें दी। हम परमेश्वर को खोजने के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद हमारे अंदर वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितनों ने पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, परमेश्वर खुद हमारे अंदर वास करते। वो असीम खजाना है जो हमारे अंदर है। 8 पद से पढ़े क्या लिखा है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर और पौलुस संकट कह में रहा है, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं ये पड़ते। कैसी बात है? हम क्लेश भोगते हैं लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते। आगे क्या है? निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निरुपाय है पर निराश नहीं होते। ये कैसी बात है पौलुस कर रहा है? हम निरुपाय हैं,
पर निराश नहीं होते। अगर निरुपाय तो मतलब निराश हो जाना चाहिए, पर निराश नहीं होते। क्यों नहीं होते? आगे पढ़े। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। पढ़ते गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हालेलुया। गिराए जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हम हैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं फिरते। पढ़ते जाएं। कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, हालेलुया। पढ़ते जाएं। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हम मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीरों में प्रकट हो। 18 पद। Come on, fast. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम अनदेखी देखी हुई वस्तुओं को नहीं, लेकिन किन वस्तुओं के ऊपर ध्यान है? अनदेखी वस्तुओं को। देखी हुई वस्तु मतलब संसार की बातें। हमारा ध्यान संसार की बातों की ओर नहीं है, हमारा ध्यान स्वर्ग राज्य की ओर है, अनदेखी वस्तुओं की ओर है, उस महिमा की ओर है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। क्या लिखा हुआ है? देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी हुई रहती है। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस इस प्रकार से कहता है, आओ हम पूरे हियाब के साथ में अपनी दौड़ को दौड़े, अपनी निगाहें यीशु मसीह के ऊपर लगाते हुए, जो कि हमारे विश्वास का रचना करने वाला और उसको सिद्ध करने वाला है। हालेलुया। अपनी निगाहों को यीशु मसीह की ओर लगा करके रखे। फॉर ही एंड्योर्ड द क्रॉस, जिसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। सारे उलझाने वाली बातों को छोड़ते हुए, सारी बातें जो हमें धीमी करती हैं उनको हटाते हुए अपनी निगाहें यीशु की ओर रखें। वो हमारा निशाना है और उसकी ओर अपनी पूरी सामर्थ्य से दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ है, कि जयवंत कैसे होंगे। परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने जीवन का मकसद बना लीजिए। जब परमेश्वर का राज्य की बातों का आप ख्याल करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बातों का ख्याल कर लेंगे। कितनों को समझ में आया? अगर आपने खजाने को प्राप्त कर लिया तो छोटी छोटी बातों के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु को पा लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। आइए आराधना में जाएंगे। खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया, और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया, और क्या मांगूं तुझसे खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया, और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। जो क्रूस उठाना था मुझे, वो तूने ले लिया। जो दर्द था सहना मुझे, वो तूने सह लिया। जो क्रूस उठाना था मुझे, वो तूने ले लिया। जो दर्द था सहना मुझे, वो तूने सह लिया। और
जब तूने खुद को ही दे दिया। उसकी महिमा करें जिसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। और क्या मांगू तुझसे खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। मेरे पाप को क्षमा कर तूने, नया जीवन मुझे दे दिया। मेरे दोषों को मिटा कर, मेरे दोषों को मिटा कर तूने मुझे धन्य कर दिया। मेरे पापों को क्षमा कर तूने, नया जीवन मुझे दे दिया। मेरे दोषों को मिटा कर तूने, मेरे दोषों को मिटा कर तूने मुझे धन्य कर दिया। और क्या भाई सब्र न करें। तुझसे खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। और क्या मांगू तुझसे खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। इस शाम प्रार्थना करे, प्रभु मुझे क्षमा कर परमेश्वर कि तूने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए दे दिया। तूने परमेश्वर हालेलुया सब कुछ मेरे लिए दे दिया प्रभु। हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए इस पृथ्वी पर उतर आया, लेकिन फिर भी हमने उसका सही से आदर करना नहीं जाना। फिर भी प्रभु मैंने उसका सही से मोल नहीं जाना। फिर भी प्रभु मैंने तेरे दिल को दुखाया है। फिर भी प्रभु मैंने दिल को तोड़ा है। फिर भी मेरी निगाहें परमेश्वर पृथ्वी की व्यर्थ बातों पर लगी रहती है। फिर भी प्रभु मैं तेरे पास तब आता हूँ जब मुझे कुछ जरूरत होती है। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की शाम परमेश्वर मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। परमेश्वर मैं समर्पण करता हूँ प्रभु कि पृथ्वी की बातें व्यर्थ है, संसार की बातें व्यर्थ है। परमेश्वर तू सब कुछ है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है प्रभु। होने दे प्रभु कि जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं अपने जीवन को कुछ नहीं जानता, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए मुनाफा है। मैं अपने जीवन को कुछ नहीं जानता। इस संसार का वैभव, इस संसार का ऐश्वर्य, इस संसार की सामर्थ, इस संसार का धन, इस संसार की सारी बातें व्यर्थ है प्रभु। केवल तू ही सत्य है, केवल तू ही मार्ग है, केवल तू ही जीवन है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। और मैं तुझको पाना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया होने दे प्रभु, मुझ पे करुणा कर। हालेलुया हालेलुया मुझ पे करुणा कर परमेश्वर। हालेलुया कि मैं उस जॉब के लिए तेरे पास नहीं आऊं, लेकिन मैं तेरे प्रेम के लिए तेरे पास में आऊं। मैं उस आशीष के लिए तेरे पास नहीं आऊं, लेकिन तेरे प्रेम के कारण मैं तेरे पास आऊं। मैं अपने स्वार्थ के कारण तेरे पास ना आऊं, परंतु प्रभु तेरे उस असीम अनुग्रह के कारण तेरे पास आऊं कि जब हम योग्य नहीं थे, जब हम अपने पापों में डूबे हुए थे, जब हम तेरी उपस्थिति
उपस्थिति से दूर थे, जब हम भटके हुए थे, जब हम अंधकार में थे, जब हम करा रहे थे और हम आंसुओं को बहा रहे थे और कोई सुनने वाला नहीं था, तब परमेश्वर तू स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर उतर आया और मेरे लिए उस क्रूस पे चढ़ गया। मेरे पापों के मोल को तूने अपने लहू के हर एक कतरे से परमेश्वर तूने अदा किया। तूने उसका मोल चुकाया, अपने लहू के एक एक खतरे को तूने बहा दिया मेरे लिए। परमेश्वर उस कीलों को तूने अपने हाथों में ले लिया, उस कीलों को अपने पैरों में ले लिया, उस कांटों के ताज को तूने पहन लिया। परमेश्वर इतना बड़ा तूने मेरे लिए बलिदान किया। प्रभु उस बलिदान को मैं समझ सकूं, उस बलिदान का मैं आज आदर करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया। कि स्वर्ग का वो राजकुमार जिसकी सेवा में दिन और रात स्वर्गदूत लगे रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर तू इस पृथ्वी पर आए और हमें संभालने के लिए, हमें गले से लगाने के लिए, हमें मृत्यु से आजाद करने के लिए। तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए आया। प्रभु इस संसार की बातें कुछ मायने नहीं रखती, केवल तू मायने रखता है प्रभु, केवल तू मायने रखता है प्रभु। आज की शाम प्रभु मैं कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या मांगू परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल तू चाहिए। मैंने अगर तुझे पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया परमेश्वर। अगर मेरे पास कुछ नहीं है पर तू है तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर, हालेलुया, मैं समर्पण करता हूं। जीना मेरे लिए मसीह होने पाए, मैं घटूं और तू बढ़ने पाए, तेरी महिमा होने पाए। और क्या मांगूं तुझसे खुदा, जो तूने खुद ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। अपने हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद करें। और क्या मांगूं, और क्या मांगूं, जैसे इन शब्दों को हम गा रहे हैं, तुझसे खुदा, अपने हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद करें। खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। जो क्रूस था उठाना, जो क्रूस उठाना था मुझे, वो तूने लिया। जो दर्द था सहना मुझे, जो दर्द था सहना मुझे, वो तूने सह लिया, वो तूने सह लिया। जो क्रूस था उठाना मुझे, जो क्रूस उठाना था मुझे, वो तूने ले लिया, वो तूने लिया। जो दर्द था सहना मुझे, वो तूने सह लिया। और क्या मांगूं तुझसे खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सामर्थी
पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु कि तू लोगों के हृदय के ऊपर इस समय कार्य कर रहा है, कि यीशु का प्रकाशन इस समय उनके ऊपर प्रभु प्रकट किया जा रहा है, यीशु का प्रेम उनके ऊपर प्रकट किया जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक नवीनीकरण हमारे अंतरात्मा में इस समय हो, filling us with your spirit again, and a new anointing is coming down on your people। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जैसे तेरे प्रेम के प्रति हम समर्पित होते हैं। I declare over them right now, इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं इनके ऊपर घोषित करता हूँ, हर एक अंधकार का बंधन जो इनके जीवन के ऊपर है, हर एक बीमारी का बंधन, हर एक बदहाली का बंधन, हर एक जागरूक होने का बंधन जो इनके जीवन के ऊपर डाला गया है, जो इनको आगे बढ़ने से रोकता है, जो इनकी आशीषों को चुराता है, उसकी सामर्थ्य को आज की शाम हम यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की आग से नाश करते हैं। हालेलुया। I curse every sickness right now। हर एक बीमारी को इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से श्राप देता हूँ। हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता को इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से दुत्कारता हूँ। इसी समय परमेश्वर के लोगों को छोड़ के चली जाए और फिर कभी लौट के नहीं आए। Leave God's people now and never return। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में मैं तेरी शांति को घोषित करता हूँ। तेरा अभिषेक इनके सर से लेके पांव तक इस समय बहने पाए। सबसे अधिक प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे प्रेम को हम समझें, तेरे प्रेम को हम जाने। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमारी रचना की, हमारे लिए इस संसार में आया, हमने उसकी महिमा देखी, उस क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और फिर आने वाला है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। प्रभु तू आदर और महिमा के योग्य है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है। Be glorified in this place, be glorified in this church। हालेलुया। इस कलीसिया के द्वारा तेरे नाम की बड़ी महिमा इस शहर में, इस राज्य में, इस राष्ट्र में और इस दुनिया में प्रकट होने पाए। I bless everyone। हालेलुया। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु उस पवित्र आत्मा की आग को और उस जुनून को मैं घोषित करता हूँ, जो जुनून पौलुस के जीवन में था, वो इस कलीसिया में होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ है। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं।